Hello everyone, welcome back to my Padhai YouTube channel. So today we are going to do top 20 plus most important questions from social science for your upcoming board examination of social science, which is on 15th of March 2023. So we are going to do top 20 most important questions. So let's begin the session. The very first question is from your geography. What are software technology parks? State any 2 points of significance of information technology industry in India. That you have to tell that what is meant by software technology parks. What is meant by the software technology parks, and you have to also suggest, or you have to also tell that the any two significance, that it means you have to tell any two significance of information technology industry in India. So we know that software technology parks provide single window service. It provides single window service and high data communication facility to software expert. That it means software technology parks provide only, ये जो सॉफ्टवेयर होती है, it provides only and only single window service and high data communication facility to software. high data communication भी provide out कराती है. देन सिग्निफिकेंस का बेसिक मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस. सो द इम्पॉर्टेंस और द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आर, it is encouraging to know about 30% of the people employed in the sector are women. That means इसमें जो है 30% people women हैं. Importance, significance you can say. A major impact of this industry has been unemployment. That it means unemployment generation. That it means a major impact of this industry has been an unemployment generation. Up to 31st March 2005, the industry employed over 1 million persons. Sorry, यहाँ पे unemployment लिख गया. It's employment. That means a major impact of the industry has been employment generation. इससे employment आता है basically. So it is a useful thing. Okay. So basically यू नो अबाउट दिस. डाटा ट्विन से हमारा 5 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है. होप यू विल नो अबाउट इट. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज describe any three features. You have to describe the three features of unitary government. That what is meant, we discussed already in the federalism chapter that it is that there was unitary government and federal government. So we have to write the three features of unitary government basically here. So firstly we have to know about that what is meant by unitary government and what is meant by federal government. So basically federal government are the government that which have the two levels of government, two or more levels of government, and unitary government has not two or more levels of government, because unitary government is not a federal government. Okay, so it has not a two or more level of government. So basically we have to now discuss about the 3 points, which is this: unitary government has only one level of government. Only one level of government. In a unitary government, the subunits are subordinate to the center. That means all the powers are in the center. The local government do not enjoy and freedom of power. The local government, that it means we are also called it community government. So the community government do not enjoy any freedom or power because of all the power are in the unitary government, have all the powers having unitary government. So local government do not enjoy any freedom or power. So basically these are the 3 points which you may know
because of this is also an important question. Next question. दिस वॉज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चंस भी हो सकता है या क्वेश्चंस के फॉर्म में भी पूछ लें. सो वेयर डिड द फर्स्ट ग्रामीण बैंक, जो पहला ग्रामीण बैंक था, कहाँ स्टार्ट हुआ था? सो द आंसर इज बांग्लादेश. नाउ वी हैव टू डिस्कस समथिंग अबाउट इट. दैट मीन्स ग्रामीण बैंक, if you getting this question in the multiple choice form, then here is your option India, first one. Second one, you just say Brazil. Third, Bangladeshi. And the fourth one is you just say China. सो बेसिकली आप लोग ये देखेंगे तब इसमें बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द इंडिया वहाँ पे लिखा रहता है, तो वो समझते हैं कि दैट इंडिया में हुआ है. बट इंडिया ने ग्रामीण बैंक का कंसेप्ट जो था वो फॉलो किया है, ना कि उन्होंने ना कि इंडिया में पहली बार ग्रामीण बैंक स्टार्ट हुआ था. सो बांग्लादेश वाज इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, now you have to study the analyze the picture which is given below, and you have to answer the question that follows. The question one, which of the following that this question asks about you, asks about the personality, the famous personality is shown in the given image. This was the image. So this questions demand that identify the famous personality. So we generally know that Bal Gangadhar Tilak. Okay, so the right answer is Bal Gangadhar Tilak. Next question. Question is here, answer is on the next page, because this question have a थोड़ा सा little bit big answer है ना. Explain any five facility available in the special economic zones developed by the central and state government to attract foreign investment. You have to explain that what are the five facility which are available in the special economic zone. 5 or 3 SEZs basically. We generally called special economic zone as SEZs. Okay, special economic zones developed by the central and state government to attract foreign investment. Special economic zones गवर्नमेंट ने क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स दिए हैं जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में फॉरेन के जैसे कि फॉरेन ट्रेड जिससे बढ़े, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हो अपने देश में, अपने कंट्री में. सो हियर आर द सम पॉइंट्स विच वी नो. Facilities available in the special economic zones developed by the central and state government are given below. So let's discuss about them. Government provide educational facilities. Companies that set up production units in the SEZ do not have to pay taxes for an initial period. Okay, for if इनिशियल पीरियड कुछ समय के लिए उनको टैक्स नहीं प्रोवाइड किया जाए, मतलब उनको टैक्स नहीं देना होता है. देन द थर्ड पॉइंट इज गवर्नमेंट हैज अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट ने लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल रखा है, दैट इट मीन्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अट्रैक्ट हों. Describe any three. Again, this question was very important, and answer is on the next page. Describe any three conditions that led to the formation of the British nation state. You have to describe any three conditions which has led the formation of the British nation state. We जनरली ये यूनिफिकेशन वाले टॉपिक के से ही क्वेश्चन हुए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि ब्रिटिश की ऐसा क्या कंडीशन हुआ कि जो ब्रिटिश नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होना पड़ा. व्हाट आर द कंडीशंस? सो लेट्स सी द आंसर. द थ्री कंडीशंस दैट लेड टू द एमरजेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. जो तीन कंडीशंस जो कि लेट किए थे एमरजेंस ऑफ द ब्रिटिश नेशन, सॉरी गवर्नमेंट नॉट ब्रिटिश नेशन स्टेट आर. नेशन स्टेट क्या होता है? जहाँ पे लोग कॉमन आइडेंटिटी के साथ में लिव ऑन करें, तो कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करें. तो ब्रिटिश नेशन का बनने में क्या क्या कंडीशंस थे?
The very first condition is that, the very पहला one condition is that the emergence of the new middle class, जो emergence था middle class का, ठीक है, जो मिडिल क्लास हुए, जब वो लिटरेट होना शुरू हो गया, एजुकेटेड थे, तो उनको उनके मन में नेशन स्टेट की फीलिंग आई कि मोनार्की, वी डोंट वांटेड द मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन सेकंड, द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, लिबरलिज्म का जो आइडियोलॉजी था, दैट इट मीन्स लिबरलिज्म, एक फ्रीडम, लिबर वर्ड दैट इट मीन्स फ्रीडम, जो आइडिया था फ्रीडम का, इसी पे एक रिवोल्यूशन भी तो हुआ था, यू नो दैट, द रिवोल्यूशन ऑफ 1848, दैट इट मीन्स उसमें क्या हुआ था डिमांड, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस का डिमांड हुआ था। देन इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए थी, सोशल फ्रीडम चाहिए थी। सो लिबरलिज्म का इसमें कंसेप्ट आया, आइडिया है, दैट इट मीन्स विच प्रमोट्स और हेल्प्स टू इमरजेंस ऑफ द नेशन स्टेट। ओके, then the idea job conservative and the treaty of Vienna, sorry, there was a misprint, the idea was not, it was not job, it was the idea was conservative and the treaty of Vienna, जो आइडिया था, किसका आइडिया था, कंजर्वेटिव, और ट्रीटी ऑफ वियना का जो साइन इन हो रहा था, मतलब कि जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी उसके वजह से भी ब्रिटिश को एक नेशन स्टेट करार दे दिया गया था, ब्रिटिश को एक नेशन स्टेट में तब्दील करने की मांग उठी थी। Then next question, who was the architect of the German unification? You have to tell by yourself and in the comment section. Who was the architect of the German unification or unification of Germany? So Otto von Bismarck. And if there was a question that who was the who was the architect of Italy, then you tell here that Italy के लिए Cavour. Okay. Next question. There is an important announcement that एक second एक announcement देनी, so I have to just going to give you the information. So we have to just take this page and here I just announce you something. Wait a minute, I have to just write something. Wait a minute. या सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि in this channel top 60 plus MCQ already completed, top 30 plus MCQ already completed, उसका एक टेस्ट पेपर शेयर आउट कर दिया गया था, दैट यू हैव टू फर्स्टली सॉल्व, देन सोल्यूशन वीडियो अपलोड होने वाली थी, दैट मीन्स सोल्यूशन वीडियो आपको कल, दैट इट मीन्स 11th of March 3 PM को अवेलेबल हो जाएगी। मैंने आज ही सेट आउट कर दिया उसको, ठीक है, तो कल वो 3 PM पर होगी, डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। ओके, और अभी तक जिन बच्चों ने उसको नहीं किया है उस टेस्ट पेपर को सॉल्व, देन यू कैन सॉल्व इट, डिस्क्रिप्शन में सारे ही चीज़ों का लिंक मिल जाएगा, टॉप 60 प्लस MCQs का भी, टॉप 30 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी मिल जाएगा। एंड इन दिस चैनल, ऑन दिस चैनल चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड हो चुकी है, एंड MCQ, that it means हर चैप्टर से MCQ प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MIQ भी प्रोवाइड आउट हो चुका है, सो यू कैन स्ट्रॉन्गर योर strengthen your board preparation which is on 15th of March, February बार बार निकला, 15th of March 2023, so be ready. Okay, go and watch link in description. Okay, okay.
नाउ वी हैव टू मूव फर्दर. एक सेकेंड. हाँ, वी डू दिस डिस्कस दिस क्वेश्चन एज वेल. ये भी हो चुका था इसमें. Now the next question: why did Gandhiji decide to withdraw from the movement in 1922? गांधी जी ने क्यों डिसाइड किया कि जो मूवमेंट चल रही थी, कहाँ की कब की मूवमेंट चल रही थी, जो 1922 में, जो 1921 में मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, NCM दैट मीन्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 में जो स्टार्ट हो चुकी थी, तो एक साल पूरे होने के बाद में गांधी जी ने उसको क्यों सोचा कि चलो इसको अब मैं विड्रॉ कर लेता हूँ. तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मेन रीज़न था. गांधी जी फेल्ट दैट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट. वो जो मूवमेंट था वो टर्न मतलब वायलेंट के कगार पे जा रहा था, मार पिटाई हो रही थी. तो इन मैनी प्लेसेस सो ही डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम द मूवमेंट इन 1922. अच्छा, बेसिक रीज़न इसका क्या था? जो उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा है, वहाँ पर चौरी चौरा इंसिडेंट फेस आउट हुआ था, जहाँ पे पुलिस स्टेशन को फायर सेट द फायर, जहाँ पे पुलिस स्टेशन को फायर पे शट आउट कर दिया गया था. तो उसी के बाद से जब लोगों के अंदर वायलेंस आ गया था, तो गांधी जी ने सोचा दैट पीपल टर्निंग वायलेंट, पीपल अब वायलेंट हो रहे हैं, so I need to, so he decided to or need to withdraw from the movement in 1922. Okay. The next question: why was printing of textbooks responsible by the imperial state in China? अच्छा, imperial state चाइना में इतनी सारी प्रिंटिंग क्यों बढ़ गई थी, प्रिंट कल्चर क्यों वहाँ पे ज़्यादा शुरू हो गया था? और एक और क्वेश्चन है इससे, दैट वन इज योर होमवर्क क्वेश्चन, दैट यू हैव टू टेल हब कौन सा बन गया था. दैट मीन्स प्रिंटिंग कल्चर का हब चाइना में क्या था? सॉरी, जापान में था ना. हाँ या सो हैव टू टेल दैट प्रिंटिंग कल्चर का हब कौन सा था. नाउ इसका आंसर देख लेते हैं. दैट व्हाट वाज द प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स रिस्पॉन्सिबल बाई द imperial state in China. Large number of printing textbooks were required for the requirement of a huge number of personnel through civil services examinations in China. अच्छा, चाइना में उस समय क्या होते थे? सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते थे. दैट मीन्स सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते थे. सो उसमें बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एजुकेट होने के लिए, लिटरेट होने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तभी तो एग्ज़ाम का एंट्रेंस पास करेंगे, एग्ज़ाम पास आउट करेंगे, तो उसके लिए उनको बुक्स की ज़रूरत पड़ती थी. सो दैट्स वाई ही वहाँ पे टेक्स्ट बुक्स पब्लिश होने शुरू हो गए थे ज़्यादा. ओके, सो दिस वाज द आंसर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू टेल दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. डैश प्रोडक्ट सिंबलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास. कौन सा प्रोडक्ट सिंबलाइज करता रिफाइनमेंट और क्लास को? सो वी हैव टू लुक एट द ऑप्शंस हियर. मशीन मेड, ह्यूमन मेड, मैन मेड और हैंड मेड. मशीन मेड जो भी क्लोथ्स होते हैं वो करते हैं, ह्यूमन मेड क्लोथ्स करते हैं, मैन मेड क्लोथ्स करते हैं, या हैंड मेड क्लोथ्स करते हैं. सो बेसिकली पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि रिफाइनमेंट आखिर में होता क्या है, क्यों करना चाहिए रिफाइनमेंट, क्या इसके पीछे का कंसेप्ट समझ लेते हैं. तो जब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लगा, तो बेसिकली हर एक कपड़ा जो निकलता था वो रिफाइन, एक ही तरीके का कपड़ा रहता था. तो उस समय, उस ज़माने के जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास यानी कि रिच क्लास रहती थी, उनको, रिच क्लास को पुअर क्लास या मिडिल क्लास की तरह नहीं दिखना था. क्या क्या नहीं करना था? रिच क्लास ही है, ठीक है, तो उनको पुअर या मिडिल क्लास के जैसा नहीं लगना था, क्योंकि जो मशीन से कपड़ा आएगा वो बेसिकली एक ही तरीके का कपड़ा रहेगा. सो रिच क्लास को अपना क्लास मेंटेन करना था, क्लास मेंटेन आउट करना था. और उनको क्लास मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए था कि उनको एक जैसा कपड़ा नहीं पहनना था, ठीक है. उनको क्लोथिंग सिस्टम जो फैक्ट्रीज से बन के आते थे, इसलिए उनको वो नहीं पसंद आता था कि एक ही तरीके का कपड़ा आएगा, रिफाइनमेंट नहीं हो पाएगी, कुछ सिम्बलाइज नहीं कर पाएंगे, कोई अपनी क्लास को नहीं दिखा पाएंगे. अगर ये हम पहन लेंगे, वो पहन लेंगे, तो उस टाइम पर ये बहुत ही बड़ा रहता था कि अगर हम ये कपड़ा पहनेंगे इनकी तरह दिखेंगे. सो उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं. तो अब आपको बताना है कि डैश प्रोडक्ट सिम्बलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास. कौन सा प्रोडक्ट?
तो इसीलिए उनको तब क्या पसंद आता था, फैक्ट्रीज का जो इंडस्ट्रियल्स का जो कपड़ा रहता था वो क्यों नहीं पसंद आता था, तो इसके पीछे का मैंने रीज़न बता दिया। तो वो कैसा कपड़ा पहनते थे, मशीन मेड का, तो मशीन मेड का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने पहले बता दिया है। तो वो हैंड मेड क्लोथ्स पहनते थे, ओके, ह्यूमन मेड नहीं, मैन मेड। मतलब बेसिकली तो ह्यूमन मेड मैन मेड है, बट हैंड मेड अगर सुइटेबल इसमें ज़्यादा है। हैंडमेड क्लोथ्स जो भी रहता था वो रिफाइनमेंट और क्लास को सिंबलाइज करता था, रिफाइनमेंट एंड क्लास को, ठीक है। वाइट सॉइल, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ज्योग्राफी का क्वेश्चन है एंड चैप्टर 1 से ही है बेसिकली, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। वाइट सॉइल कंसिडर्ड आज एज अ रिसोर्स, एक्सप्लेन विद 5 आर्ग्यूमेंट रीजन्स। सॉइल को क्यों रिसोर्स की तरह देखा जाता है, कंसिडर किया जाता है, आपको एक्सप्लेन करना है 5 आर्ग्यूमेंट और रीजन्स के साथ में। तो बेसिकली जो सॉइल रहा है, सॉइल इज कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स बिकॉज इट इज़ यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। सॉइल का मतलब क्या होता है, मिट्टी। मिट्टी हमें क्या करती है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। ये रिसोर्स है, तभी तो अगर इसको रिसोर्स कहा गया तो रिसोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, रिसोर्सेज आर दोज थिंग्स विच सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड विच आर कल्चरली एक्सेप्टेबल, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल एंड इकोनॉमिकली फिजिबल। यानी कि वो इकोनॉमी से हमारे लिए सही बैठ रहे हैं, ये नहीं कि जितने का रिसोर्स हम लोग प्राप्त करने में लगा रहे हैं उससे ज़्यादा का, जितना हम लोग को रिसोर्स नहीं मिल रहा उससे ज़्यादा का हम लोग उसमें प्राप्त करने में लगा दे रहे हैं, यानी कि इसको निकालने में उससे ज़्यादा उस पर लग रहा है पैसा, तो ये नहीं, उसको रिसोर्स नहीं कहते हैं। जो कल्चर के अकॉर्डिंग आए हो, फिट हो, उसी को जो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो और जो इकोनॉमिकली फिजिबल हो और जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, सॉरी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, तो उसी को रिसोर्स कहते हैं। तो बेसिकली रिसोर्स क्या होता है, सेटिस्फाई करता है, तो ये तो आंसर होगा ही होगा। फिर इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स, हाँ रिन्यूएबल रिसोर्स है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, हमने पढ़ा है। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल होते हैं, रिन्यूएबल जिसका हम रिप्लेनिश ना हो, एग्जॉस्ट ना हो, खत्म ना हो, नॉन रिन्यूएबल जो खत्म हो जाए, तो ये खत्म नहीं होंगे। फिर ये मीडियम है प्लांट ग्रोथ का, बेसिकली यस ये मीडियम है प्लांट ग्रोथ का, क्योंकि सॉइल्स पर ही तो प्लांट उगते हैं। देन इट इज होम टू इन्फिनिटी नंबर अवेलेबल फॉर्म्स ऑफ, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग लग रही है, मतलब ये बेसिकली बताता, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा पर ये बेसिकली बताता है कि जो है ये बहुत ही सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक प्रकार से घर की तरह से यूज आता है। इन्हीं पे घर बनते हैं, फैक्ट्रीज बनती हैं, इंडस्ट्रियल्स बनते हैं, तो ये हर एक चीज़ के लिए ज़रूरत है और ये बेसिक है, ये हमारे लाइफ का बेस है। if there was no resource if there was no soil then life can't exist ना, क्योंकि सॉइल पे ही, लैंड पे ही तो सब काम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम ज्योग्राफी। अच्छा एक चीज़ और बताना था, दैट इसमें इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं इंक्लूड किया गया बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स से 4 चैप्टर्स आ रहे हैं बेसिकली, तो 4 चैप्टर्स वो छोटे छोटे हैं, अच्छे चैप्टर्स हैं, तो इसके लिए मैंने पहले ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना लिया था मैं, लेकिन इसको भी पोस्ट नहीं किया हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा एरर आ रहा था, so that's why I not posted that video, uploaded that video yet, but उसके लिए भी थोड़े दिन में अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो मैंने बना लिया था पहले, मुझे नहीं लगा था कि मैं इसका वीडियो बना पाऊँगा, क्योंकि इतना टाइम, मतलब कि मैं भी तो यू नो दैट आई एम ऑल्सो इन क्लास 10th है ना, तो मैं अपना बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा था, मैं पहले से बना लिया था। फिर मैंने कहा लो एक वीडियो और बना ले जाए, तो इसमें मैंने इसलिए इकोनॉमिक्स का नहीं डाला क्योंकि इसमें मैंने इकोनॉमिक्स का एक पर्टिकुलर सेशन ले ही लिया है, तो उसको बस अपलोड करने की देर है। तो अपलोड जैसे एरर वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, मैं उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो वो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हिस्ट्री। Why did Jawaharlal Nehru proclaimed the dams as the temples of modern India? MCQ के क्वेश्चन में भी आ सकता है that who proclaimed the dams as the temples of modern India, और इस तरह भी आ सकता है that Jawaharlal Nehru proclaimed dash 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 और blank 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 and options are given to you, so you have to check it out। तो आंसर देख लेते हैं, that they eliminate reducing flooding, yes। अच्छा डैम्स को टेम्पल क्यों कहा गया है, क्योंकि ये एडवांटेजेस के रूप में मदद करते हैं ना,
एडवांटेज है, बेसिकली डिसएडवांटेज भी है लेकिन एडवांटेज इसके ज़्यादा हैं। ये एलिमिनेट करता है रिड्यूसिंग फ्लड को होने से एलिमिनेट करता है। ये प्रोवाइड करता है वाटर एग्रीकल्चर के लिए, डैम होगा तो एग्रीकल्चर को वाटर डैम होगा तो वाटर मिलेगा एग्रीकल्चर को। दे प्रोवाइड वेट अ मिनट, बेसिकली दे प्रोवाइड वाटर फॉर ह्यूमन एंड इंडस्ट्रियल कंजप्शन, वाटर ह्यूमन और इंडस्ट्रियल दोनों के लिए प्रोवाइड करता है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करने में मदद आउट करता है, ठीक है। नाउ दिस वॉज अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट ये एक यू कैन से दैट ये केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन है, बट इफ इमेज के बेस में केस बेस्ड है, केस बेस्ड क्वेश्चन तो है बट ये इमेज के बेसिस पर केस बेस्ड है, ओके। यू हैव टू द क्वेश्चन सेज दैट यू हैव टू लुक एट द गिवन image and answer the question that follow. This was the image, you have to look properly. PDF are also been attached, so don't worry about the PDF. You have to look, wait a minute, green red color se. You can see here that what type of crop it is, you can imagine. Now we have to move on the next question. Now we have to move on the question, next question. द फर्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कल्टिवेशन इट इज, आपको बताना है कौन से टाइप का कल्टिवेशन है। सेकंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉइल इट रिक्वायर। थर्ड, विच टाइप ऑफ क्रॉप इज इट। फोर्थ, विच फार्मिंग इट इज। फिफ्थ, लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट। तो विच टाइप ऑफ कल्टिवेशन इट इज, तो बेसिकली ये कौन सा कल्टिवेशन है, तो ये टी का कल्टिवेशन है, टी फार्मिंग हो रही है ना, तो टी का कल्टिवेशन है। विच टाइप ऑफ सॉइल इट रिक्वायर, बेसिकली हमारा माउंटेन सॉइल को रिक्वायर करता है। एलुवियल सॉइल इसके लिए सुटेबल रहता है, माउंटेन सॉइल सुटेबल रहता है। थर्ड, विच टाइप ऑफ क्रॉप इज इट, कौन सा टाइप का नॉन फूड क्रॉप है, ठीक है। विच टाइप ऑफ फार्मिंग इट इज, प्रिमिटिव और इंटेंसिव, सो हैव टू टेल इंटेंसिव। सबसिस्टेंस फार्मिंग, मशीनरी लगती है, ट्रांसपोर्टेशन, शिपमेंट, इसमें सब में, ठीक है। देन लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, तो असम है। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द, इसी के एक बार आंसर्स को नेक्स्ट देख लेते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि क्या क्या आंसर होगा, मगर एक बार फिर से रीच आउट कर लेते हैं सारे आंसर्स की तरफ में। टी एलुवियल, जो मैंने बताया था सही है। एलुवियल के साथ माउंटेन भी यहाँ पे लिख लीजिए, माउंटेन लैटराइट सॉइल में भी ये उगते हैं। टी basically, then non-food crop, then intensive, then Assam. Okay, you have to take the screenshot as well if you want. ठीक है। Why did Gandhi ji decide to withdraw from the movement in 1922? अच्छा, ये क्वेश्चन अभी मैंने करवा दिया है, सो क्रॉस दिस क्वेश्चन मैंने अभी पहले करवा चुका है, ठीक है, दोबारा आ चुका है। नाउ दिस वाज अगेन अ क्वेश्चन, आंसर इज ऑन द नेक्स्ट पेज। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा है ये, वेट अ मिनट, हाँ चलिए। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सपोज द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। डेफिनेटली एक ना एक सेट में तो आना ही आना है, जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है ये, और 3 मार्क्स के भी आ सकता है, सो यू कैन प्रिपेयर फॉर बोथ। इसका मैंने एक इमेज लगा दिया था क्योंकि, ठीक है, तो चलिए इसी से पढ़ लेते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बेसिकली क्या करता है, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस 1930 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पैसिव मूवमेंट है, और सिविल डिसोबीडियंट, हम लोग पहले बेसिकली नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं कि आखिर में होता क्या। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दैट इट मीन्स वी कैन सी जनरली से विद द एब्रिविएशन NCM। तो NCM हमारा क्या कहता है कि ये जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920s में, तो इसके पीछे का क्या मेन मोटिव था, क्या मेन मकसद था कि वी बॉयकॉट द थिंग्स विच आर ब्रिटिश मेड, दैट इट मीन्स जो भी ब्रिटिशर्स का सामान है, वी डोंट यूज इट एंड वी बायकॉट इट, दैट मीन्स वी हैव टू। तब उस टाइम पर क्या होता था, लोगों ने जितने भी ब्रिटिशर्स के क्लोथ थे वो पहनना छोड़ दिए थे, फिर टीचर्स ने
जॉब्स अपने टीचिंग छोड़ दिए थे, लॉयर ने अपने काम को छोड़ दिया था, यानी कि हर एक जगह पे एक नेशन वाइड चल रहा था एनसीएम, ठीक है। एनसीएम हमारा नेशन वाइड चल रहा था। और अगर हम लोग सीडीएम की बात करें, दैट इट मीन्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये सब तो था ही। ये बेसिकली 1930 में स्टार्ट होता है, 10 साल के बाद, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के 10 साल के बाद। तो बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा 1920 में, सिविल डिसोबीडियंस 1930 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमें कहता था कि आप लोग बॉयकॉट तो करिए, मगर उसके साथ साथ में ही आप लोग जो जितने भी ब्रिटिशर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको भी तोड़िए, ब्रेक डाउन करिए। तभी गांधी जी ने एक अपना डांडी मार्च किया था, जिसमें उन्होंने सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया था, सी से सॉल्ट को बनाया था, सी वाटर से। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। 1920 में, 1930 में स्टार्ट हुआ था। ये हमारा एनसीएम हमारा पैसिव मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस एक्टिव मूवमेंट है। नॉन कॉपरेशन हमारा एम था कि गवर्नमेंट स्टैंड स्टिल बाय द विथड्रॉ एवरी सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लार्ज नंबर ऑफ पीपल एनसीएम में हुए थे और मैनी पीपल बैक्ड आउट दिस मूवमेंट ड्यू टू द फुलफिलमेंट, ड्यू टू नॉट, एक सेकंड, इसमें आधा था, इमेज आया नहीं है, सो हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। फिर इसको आप मत पढ़े क्योंकि हाफ इमेज इसमें कट आउट हो चुका है शायद गलती से। तो बेसिकली इसमें सिविल डिसोबीडियंस में पहले तो बहुत अच्छी संख्या थी, लेकिन जब गांधी इरविन पैक्ट होता है, गांधी इरविन पैक्ट ये होता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत जब ब्रिटिशर्स को भी गुस्सा है तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लोगों को इन जेल में डाल दिया। तो ब्रिटिशर्स ने फिर गांधी जी के सामने एक डिमांड रखा कि हम इनको छोड़ देंगे, बट मेरी बैटरी भी डिस्चार्ज हो रही है, बट अगर आप जब हमारे साथ चलेंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ पर जाकर के जब गांधी जी ने हुआ बातचीत हो रही थी, तब भी वहाँ पर भी हम लोग के बारे में बात नहीं उठाई गई। तब गांधी जी वहाँ से डिसअपॉइंट होके यहाँ आए, तब उन्होंने देखा, फिर उन्होंने फिर सीडीएम को स्टार्ट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, लेकिन तब के समय पे वहाँ पर ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिली, ठीक है। Now next question: when did the Great Irish potato famine takes place and what were its result? The Great Irish potato famine took place in 1845 to 1849 एंड इससे 10 लाख लोग हंगर की वजह से मर गए थे, मतलब डाई हुआ था, ठीक है, मारे गए थे। Then the next question: explain with examples the importance of advertisement in marketing goods, in marketing of goods। बेसिकली ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, so you need to know this question because ये भी important question है। एक्सप्लेन करिए इंपॉर्टेंस एडवर्टाइजमेंट का मेकिंग मार्केटिंग ऑफ गुड्स। तो एडवर्टाइजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस रहता है कि कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, मार्केट में लाने के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट जो हमारे होते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम लोग को बात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो हमारे होते हैं बेसिकली, एक सेकेंड, हाँ, एडवर्टाइजिंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द मार्केटिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट, क्योंकि इससे जो ये हमारा प्रोडक्ट डिज़ायरेबल लगता है। अगर हमको नीड नहीं होती है तब भी हमको लगता है कि हाँ अब तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वी वांट टू बाय, वी वांट टू परचेज इट, इसलिए ये डिज़ायरेबल और नेसेसरी हो जाता है। अगर एडवर्टाइजमेंट को हम लोग देख लेते हैं, उस पर बढ़ा चढ़ा के बात होती है। देन द ट्राई टू सेव द माइंड्स ऑफ द पीपल, नहीं, दे ट्राई टू शेप, नॉट सेव, इट्स शेप, SHAPE, ओके। दे ट्राई टू शेप द माइंड्स ऑफ द पीपल एंड क्रिएट न्यू आइडियाज को क्रिएट आउट करते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट चाहिए, और ये हमें हेल्प करते हैं प्रोडक्ट को बेचवाने में, ये एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। देन इसी के साथ थैंक यू फॉर द सेशन। ये सेशन ओवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, एंड इकोनॉमिक्स का सेशन जल्दी आएगा। हियर आर सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होमवर्क क्वेश्चंस, ठीक है, सो यू कैन डू एंड टेल इट ऑन द कमेंट सेक्शन, ओके। क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन मैं कुछ दे रहा हूँ, यहाँ पर नहीं देता हूँ, एक सेकंड, यहीं पर दे देता हूँ जहाँ पर भी मैं बताया था।
फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज आपको ये बताना है विच की इन बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल कौन सी इंडस्ट्री यूज करती है। बॉक्साइट रॉ मटेरियल की तरह कौन सी इंडस्ट्री यूज करती है। देन कौन से सिटी को हम लोग ऑटोमोबाइल सिटी कहते हैं, ऑटोमोबाइल सेंटर कहते हैं इंडिया का। आपको बताना कौन सी सिटी ऐसी है। ठीक है, ऑप्शन मैं आपको दे दे रहा हूँ। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज उत्तर प्रदेश, द सेकंड ऑप्शन इज चेन्नई, द थर्ड ऑप्शन इज गोरखपुर एंड द फोर्थ ऑप्शन इज जमशेदपुर। यू हैव टू टेल दैट अमंग दीज फोर ऑप्शंस क्या होगा। चेन्नई भी है, नोएडा भी है, सॉरी उत्तर प्रदेश भी है, गोरखपुर भी है। तो आपको देख के सोच समझ के आंसर बताना। सो दीज आर द टू क्वेश्चंस। होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल and if you like the session, so don't forget to subscribe the channel, and as well you like, share, subscribe. All the things are which I tell, that top 60 plus, top 30 plus, all the things are available in the description box as well in the pinned comment also. एंड जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा इस वाले क्वेश्चन का, जो मैंने दो होमवर्क क्वेश्चन दिया उसको पिन किया जाएगा। द बेस्ट आंसर, जो बेस्ट आंसर देगा और जो सबसे पहला आंसर देगा, अगर जो बेस्ट आंसर लग गया मुझे, उसको पिन किया जाएगा। और कम्युनिटी पोस्ट पे भी उसको एक बार उसका नाम डाला जाएगा। उसको जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।